ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਅਨ ਕੇ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕਾ ਸੁਖ ਦਏ ਜਹ ਤਹ ਭਏ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲਵਾ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਜਿੱਥੈ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੁਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋ ਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸਵਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੁਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸੀ? ਸਤ ਕਰਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। 84 ਲੱਖ ਜਿਉਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਅਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਇਨ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰੀ ਜਿਉਨੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਥੋਰ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੋਟ ਜੀਭਾ ਦੀਜੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਭਾ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਭ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਏ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੁਨः ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੈਂਟ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛਿੜਕੋਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛਿੜਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਬਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਵਤਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਬਲ 52 ਪਾਇਓ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, 4 ਯੁੱਗ ਨੇ 4। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਤਯੁਗ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਦੁਆਪਰ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ, ਫਿਰ ਸਤਯੁਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, 9 ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ 4 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ, 4 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਰ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਤਾਕਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਆਪਰ ਦੋ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੈਸੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਐਸੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ 10 ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਤੇ 9 ਠੱਗ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੱਛੀ ਕਦੋਂ ਫੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਲਯੁਗੇ ਤੇ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗੇ, ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗੇ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਰੋਗ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰੋਗੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਣ ਦਿਆ। ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ, ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੂੜ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਤ। ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ, ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ, ਗਰੋਂਡੇ ਵੀ ਝੂਠ, ਸਫੈਦੋ ਵੀ ਝੂਠ, ਪਾਣੀਪਤ ਵੀ ਝੂਠ, ਕਰਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ, ਈਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ, ਇਰਾਕ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ। ਚੀਨ, ਤਿੱਬਤ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਬਗਦਾਦ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਗਾ ਕਰੇ, ਝੂਠ ਕਰੇ, ਠੱਗੀ ਕਰੇ, ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ? ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਮਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਨ ਧਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਝੂਠ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਤ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਈ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਡੰਗਰ ਨਾ ਵੜੇ, ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਾੜ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾੜ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੌਲਾਣੇ ਤੇ ਜੋਗੀ, ਤਿੰਨ ਮਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾੜ ਸਨ, ਵਾੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਸੰਭਾਲਨੇ, ਵਾੜ ਲਾਣੇ, ਵਾੜ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਵਾੜ ਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਧਰਮ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਓ, ਉਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਕੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਦਗਾ, ਫਰੇਬ। ਜੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਸਜਿਦ, ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਾਂਗੇ ਸੀ। ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਡਾਮਾਡੋਲ, ਬਟ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਨੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜ ਤਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ, ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਧਰਮ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਰ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੁਰ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣ, ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਠਾਠ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਵਰਗਾ, ਮੋਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਓ ਪਗਰ ਜੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 1200 ਈਸਵੀ 'ਚ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ 1526 ਬਿਕਰਮੀ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਈ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਡੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਅਗਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡੋਲਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਫੇਰੇ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ, ਉਹਦਾ ਜੇਠ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਧੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਉੱਠੇ, ਅਰਦਾਸ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਲ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕੇ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਏ, ਮੱਝ ਏ, ਫਸਲ ਏ, ਚੰਗਾ ਹਾਲੇ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨੇਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦਈ ਏ, ਧਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੁਖੀ ਲੋਕ। 1984 ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲ ਰਹੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਨਾ, ਉਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਜੋਦੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਵੇਖਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਦਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਔਰ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਰਸਦਾਇਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਹਿਸਟਰੀ।
ਕਲਾਤਮਕ ਹਿਸਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਐਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬੜਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜੋ ਹੋ ਬੀਤਿਆ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਵਧਾਣਾ ਨਾ ਘਟਾਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੂ ਬਹੂ ਉਵੇਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਸੰਪਾਦਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਬਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਭੈਣ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮੰਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਨੇ ਵਰ ਮੰਗੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ, ਨਾ ਰਾਮ ਦਾ, ਨਾ ਰਹੀਮ ਦਾ, ਨਾ ਕਰੀਮ ਦਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਔਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਈ ਮੂਰਖ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇ ਕੀਟ ਕੋਟੇ ਉਪਾਏ, ਉਸਾਰੇ ਗੜੇ ਫਿਰ ਮੇਟੇ ਬਣਾਏ। एक शिव भय एक गए एक फेर भय, रामचंद कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। कोई ब्राह्मण कोई हिंदू वीर श्री कृष्ण महाराज दे प्रथाए गल लिख सकता है, किते कृष्ण से कीट कोटै उपाए। बई अकाल पुरख ने अपनी रची धरती दे विच कृष्ण वर्गे करोड़ां कीड़े पैदा कर दिते ने। कोई हिंदू कृष्ण महाराज नूं कीड़ा लिख सकता है? दसो। एक नहीं, गुरु गोबिंद सिंह कहते किते कृष्ण से कीट कोट है उपाय। जो दी गल आउंदी है महाराज कहते कृष्ण वर्गे ते करोड़ां ने महाराज, एक थोड़ी करोड़ां तेरी रचना च ने। तो जो कृष्ण जी की गल आउंदी है ते फिर उत्थे भी लिखिया जाता है, हस बोले भगवान जी। भाई गुरदास ने लिखे। दोवें गल्लां समझनियां पैंदियां। असीं की करने आ, निंदा नूं समझण दे बजाए, विचार दे बजाए एक मिनट च निंदन लग जाने। जिथे रब की गल आउंदी है कृष्ण जी नूं कीट लिख दिता है, जिथे कृष्णा अवतार की गल आउंदी है 250 अंगां च उन्हां दा जीवन लिख दिता है गुरु गोबिंद सिंह ने। जिथे अकाल पुरख की गल आएगी, कृष्ण वर्गे करोड़ां ने रामचंद्र, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। पर जिथे रामचंद्र की गल आ रही है, राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत, सुरगबास रघुबर करा सगरी पुरी समेत। वड्डी रहरा साहिब च पंक्ति आउंदी रामावतार दे विच। जिथे उन्हां दी गल आउंदी, उन्हां दे गुणां नूं प्रगट कीता, अवगुणां नूं दस्सिया निष्पक्ष हो के। पर नाल इह वी आख्या राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो। मैं नहीं मानता, मैं दस रहा, मैं मानना अकाल पुरख नूं। कृष्ण जी कोल गए, कृष्ण जी नूं जाके आख्या भी कृष्ण जी तुहाडी जरूरत है? कहंदे हाँ महाराज। रब नूं आख्या कृष्ण जी ने। कहन लगे भी संसार च बड़ा बुरा हाल है ते तैनूं जाना पएगा, धर्म कायम कर।
साध संगत जी कहते जदों कृष्ण नूं आख्या उन्हें झाती मारी, कहता महाराज द्वापर च पांडव मेरी गल ते मनदे सन, मैं 5 पिंडां ना सा 5 पिंडां च ही राजी हो गए सन। इस युग च किहड़ा गल मनदा किसी दी। पंडित गुलाब सिंह जी एक महापुरुष होए ने निर्मले, उन्हां दा ग्रंथ है प्रबोध चंद्र नाटक। उस ग्रंथ दे विच उन्हां कलयुग बारे लिखिया, कहंदे कलयुग दी मर्यादा की है, कहंदे कोई ना किसकी बात मने है, आप अपने पंथ चले हैं। इस युग दे विच कोई किसी दी गल मनन लई तैयार नहीं हुंदा। अगर कोई भले दी आखेगा उन्होंने मनन लई तैयार नहीं हुंदा। इस युग दे विच हर बंदा इन्ना सियाणा बनदा है, इन्ना सियाणा बनदा है। साध संगत जी कदे विचार करके वेखना, अज तो 20, 50, 100, 150 साल साडे बजुर्गां कोलों सुनने आ, 10-10 साल के बच्चे हो जाते, उदों पहला जाओ तो उन्होंने बहुता पता नहीं। अज 2-3 साल के बच्चा इन्ना अगे हाई फाई, कारण ये मर्यादा है भी इत्थे बड़ी तेजी होएगी, बंदा अपने बराबर नहीं समझेगा किसी ने। उन्हें भी ना कर दी। श्री रामचंद्र हथ जोड़ गए, कृष्ण जी हथ जोड़ गए, अकाल पुरख ने आख्या भी ये मेरे बड़े नजदीकी अवतार ने हथ जोड़ के किनू घल्लिया जाए। कहते धरती ने फिर आख्या महाराज घल्लो। अकाल पुरख ने सारे अवतारां नूं पुछया, जदों कोई ना मन्निया, कहते महाराज निरंकार एकदम जोश चाहे, वीर रस चाहे, उन्होंने अपने अंदरों भाई वीर सिंह नानक चमत्कार ग्रंथ च लिख दे, एकदम अपने अंदरों एक प्रकाश प्रगट किया। एकदम अपने अंदरों एकदम एक प्रकाश प्रगट किया। वो प्रकाश सामने प्रगट होके मनुख का रूप धारण कर गया। अपने अंदरों अकाल पुरख ने एक प्रकाश, परम प्रकाश चो प्रकाश प्रगट होंदा है। उन्होंने दोवें हथ जोड़ ले, प्रकाश ही सी मनुख का जामे च, पर प्रकाश ही सी, उन्हें हथ जोड़ दिते। दोवें हथ जोड़ के अकाल पुरख दे वल नमस्कार कीती। अकाल पुरख ने उन्होंने आख्या तुहाडा नाम नानक निरंकारी, मेरा नाम पार ब्रह्म निरंकारी। इस संसार दे विच मैं तुहानू अपना रूप दे के भेज रहा, तुहाडे च मेरे च कोई अंतर नहीं होएगा। अकाल पुरख ने गुरु नानक साहब नू आख्या तुसी संसार ते जाओ, धर्म की स्थापना कर दवो, जिधर भी जाओ। जेड़े लोकी ठग, चोर, झूठ, दगा, फरेब, विषे, वकार 8-8 बजे तक सुते रहिंदे, उन्हां लोकां नू बांह फड़ के ते एक बारी मेरे घर की सोझी दवा दो। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ आखो सिमरन करो। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी। जिहड़ा रब दा सिमरन है वह बड़ा वड्डा ते बड़ा उच्चा है। साध संगत जी असी करते नहीं, साडे कोल समा नहीं, असी इन्ने बिजी हाँ अपने बच्चियां च, अपने परिवारां च, अपने फोनां च, अपने टीवियां च, अपने धंधियां च, इन्ने बिजी हाँ साडे कोल एक जपजी साहब दा पाठ 24 घंटियां च करन दी फुरसत नहीं। ते फिर असी जदों दुख आ जाता, असी गुरु ग्रंथ साहब अगे आके महाराज दुख आ गया, तो गुरु हस रहा हुंदा वेख के, पुत्र 40 साल की 50 की तेरी उम्र हो गई, तू कदे जपजी साहब नहीं किया, तू कदे रहरा साहब नहीं की, तू कदे मूल मंत्र का सिमरन नहीं, ते दुख दुख तो आएगा ही। साध संगत जी महाराज ने निरंकार पातशाह नूं नमस्कार की। महाराज ने नमस्कार करके आख्या महाराज असी जावांगे, तुहाडा हुक्म है। आप ही ने पर अपने चो प्रगट, अपने चो प्रगट किया गुरु नानक साहब ने। जोत रूप हर आप, ज्योति रूपे काल पुरख प्रकाश है। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, गुरु नानक देव जी कहाए ने वो रब। हुण महाराज नूं भेजना ते इत्थे राय भोए दी तलवंडी, माता का नाम है माता तृप्ता जी। तृप्त शब्द का अर्थ पता की हुंदा है? तृप्त
गुरु ग्रंथ साहिब च आया तृप्त शब्द, तृप्त पई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ध्याया। बई महाराज तृप्त हो गए हैं तेरे नाम दे भोजन नूं छक के। तृप्त मैंने हुंदा भी रज जाना, भुखा बंदा व्याकुल हुंदा, भुख लगी होवे रोटी वाल भजदा, जिहड़ा तृप्त होए आराम नाल बैठा हुंदा, छक लिया आराम करदा। माता तृप्ता जी बड़े तृप्त सुभाअ दे सन, कदे काले नहीं पए। माता तृप्ता दे बारे लिखिआ भी वो इन्ने शांत सुभाअ दे सन, वो अपने जीवन च कदे अपने पेके घर भी उन्होंने बिना कारण काले नहीं पए, उच्चा नहीं बोलिया बिना कारण। कारण ते साध संगत जी कोई संत होवे साध होवे, कहंदे चंदन हुंदा, चंदन सिर ते लांदे ने ब्राह्मण, ठंडा बड़ा हुंदा है, चंदन बड़ा ही ठंडा हुंदा, उहनूं पत्थर ते रगड़ी जाओ रगड़ी जाओ रगड़ी जाओ ते अग निकलण लग जांदी ठंडे चंदन चों भी। कोई भी ये धरती ते अगर तुसी उहनूं तंग करोगे परेशान करोगे तो खाला पएगा ही, पर बिना कारण नहीं पैंदे। महापुरुष जिहड़े हुंदे ने बिना कारण नहीं पैंदे, कदे भी बोलदे हो। माता जी का सुभाअ बड़ा शांत, रब नूं मनण वाला, सिमरन करन वाले। और कल्याण दास गुरु नानक साहिब दे पिता जी वो पटवार खाने च काम करते सन, राय बुलार दे कोल। साध संगत जी माता तृप्ता जी दे घर हुण माता तृप्ता ते गुरु नानक साहिब दे पिता नूं ये ना समझ लिया जे एवें ही आ गए महाराज, बड़े वड्डियां आत्मावां सन। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। गुरु ग्रंथ साहिब की लिखिआ, जिस पिता दे घर गुरु आउंदा वो पिता ते धन ने, जिस कुल दे विच बेदियां चाहे वो बेदी भी धन ने। धन धन सो जननी, जननी मैंने मां जनन वाली जिन्हें जणिया गुरु। धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए, मां धन है। इधरों साध संगत जी अकाल पुरख ने हुक्म कर दिता, राय भोए दी तलवंडी ते माता तृप्ता जी गर्भवती हो गई। पहला वड्डी बेटी का नाम सी नानकी, नानकियां दे पिंड पैदा हुई सी, नानकी नाम रख दिता। इधरों माता तृप्ता जी गर्भवती हो गए। खुशियां साध संगत जी चारे पासे परिवार दे, कोई बहुत वड्डे अमीर नहीं सन, बहुत गरीब भी नहीं सन, मिडल क्लास जिन्हों अज आने मध्यम वर्ग। पैसे की कमी भी नहीं सी पर ढेर भी नहीं सन। महाराज सच्चे पातशाह अकाल पुरख रब घर आ रहा है तो उन्होंने एवे भी उन्होंने दे भाने। हुण साध संगत जी साडे वास्ते गुरु नानक रब है, पर बाबा कल्याण दास ते माता तृप्ता दे लई गुरु नानक उन्हां दा पुत्र है। साडे लई गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह निरंकार ने। चलो माता गुजर कौर दे लई ते गुरु तेग बहादुर साहब लई ते पुत्र है ही ने, पर पटना साहिब दी धरती ते विराजमान माता राणी मैणी वो जिहड़ी अपनी झोली च बिठा लैंदी ते जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज गोबिंद राय दे रूप च उहनूं मां आंदे, मां ते अपनी छाती नाल ला के रो रो के चेहरा धो देंदी कलगीधर पातशाह दा। कहंदा पुत्र तू मैनू, राणी मैणी पता की आंदी, कहंदी गोबिंद राय तुसी जदों मैनू मां आंदे हो ना मेरा कलेजा निकल जांदा, मैं खुश हो जानी। ममता बड़ी वड्डी चीज जे, इस्त्री च ममता वध जे ना, ममता इस्त्री औरत अपनी ममता नूं थोड़ा जिहा वधा ले। 30 साल दी औरत, 35 साल दी, 80 साल दा बजुर्ग भी पुत्र है उहदा। ममता बड़ी वड्डी चीज होंदी। औरत अपनी ममता नूं वधा ले ना, ममता नूं 80 साल दा आ गया कि ना मां, फिर उहनूं इंज लगे भी ये भी ते जणिया ना किसे ने, मेरे घर जणिया आया है, ये भी ते किसे मां दे पेट चों निकलिया, गर्भ चों। ममता इस मैं कह रहा भी आज जिहड़ा जोगे दसम ग्रंथ की निंदा करने वालियां नूं मैं इस स्टेज तो दस रहा, याद रखिया जे। श्री दसम ग्रंथ साहिब कलयुग के बारे लिखिया, जदों महाराज कलकी अवतार ने कलंक का जिक्र करते, महाराज कहते इन्ना भयानक समा आएगा औरत मातृत्व गवा देगी।
स्त्री ममता गवा देगी। कलयुग ऐसा प्रभाव पाएगा, अपने इखलाक तो हर बंदा डिगदा जाएगा। मैं कुछ बचन ने नहीं कह सकता इत्थे, क्योंकि सभ्य सभा दे विच सभ्य बचन उत्थे महाराज ने इत्थे होया संसार जो ਉਹਦੇ ਚ लिखिया ते मूर्ख लोग दसम की निंदा। मैं गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च दस रहा तुहानू, सामने गुरु ग्रंथ साहिब का दरबार है, घर है। जिस जिस बंदे ने जाप साहिब की, सवैयां की, चौपाई साहिब की निंदा की है ना, जिन्ना जिन्ना ने भी निंदा की साध संगत जी, आने वाले 1 साल दे विच तुसीं उन्हां दा हशर वेख्या जे। जिन्हां ने जाप साहिब, सवैये, चौपाई साहिब, अरदास दी, चंडी दी वार दी, गुरु गोबिंद सिंह दी पवित्र बाणी दी निंदा की है, स्टेजां ते बह के उन्हां दियां जीभां ते उन्हां दे मूंह दा की हाल हुंदा है। मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे भै च आके हथ जोड़ के कह रहा, 1 साल च तुहाडे हत्थां च फोन आउणगे ते उन्हां दे हाल होणगे। ते फिर जेड़े अज कह रहे ना नहीं दसम ग्रंथ गुरु दा, नहीं दसम, फिर वो हाथ जोड़ेंगे, सच्चा पातशाह बख्श नहीं सानू भी, इन्हां पिछे लग के 4 दिन असीं भी माड़ा आंदे रहे। हालत वेखना, हालत उन्हां दी तुहाडे अगे होवे। महाराज निरंकार अकाल पुरख प्रकाश धारण करना। ते साध संगत जी, माता तृप्ता जी गर्भवती, बाबा कल्याण दास जी बड़े खुश ने। कत्तक दी पूर्णमासी का समा हुंदा है ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह सुनी पुकार दातार प्रभ, उन्हें अरदास सुन ली सारी दुनिया दी। गुरु नानक जग माहे पठाया, जाओ गुरु नानक साहब जी, माता जी दे उदर दे विच भेज दिता। जदों कहंदे महाराज दा प्रकाश होया ना, राय भोए दी तलवंडी ननकाना साहब, ननकाने साहब दा पुरातन नाम है नानकियाना। अज भी उत्थे जेड़े पुराने दस्तावेज पाकिस्तान च उत्थे ननकाना नहीं नानकियाना, भी गुरु नानक साहब दे आउण दी थां जिथे गुरु अवतरित होए। गुरु नानक साहब ननकाना साहब प्रगट हुंदे ने। कहते जदों गुरु नानक साहब का प्रकाश होया ना, तो जिहड़ी दाई दे हत्थां च गुरु साहब आए, गुरु साहब रो नहीं सन रहे। सारे संसार च बच्चा पैदा हुंदा ना, रोंदा है, मैं रब तो टुट गया, की करांगा इत्थे। साध संगत जी, गुरु साहब मुस्करा रहे थे। जदों प्रकाश हुंदा है, कहंदे बाले वाली साखी च जन्म साखी है, भाई बाले दी लिखाई ते गुरु अंगद देव साहब ने लिखाई, बाले ने लिखवाई सी ते पैड़े मोखे ने लिखी खडूर साहब। ਉਹਦੇ च लिखिया है बई जदों गुरु नानक साहब का प्रकाश होया ते दुधिया रंग दी, जिवें दुध का रंग हुंदा ना, दुधिया रंग दी जिवें लाइट हुंदी है, रोशनी, सारे कमरे च प्रकाश हो गया, बड़ा चानन होया। सतगुर नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन होआ। भाई गुरदास जी लिखते, जदों गुरु नानक साहब का प्रकाश होया ते चानन जीवां दे हिरदियां च भी हो गया ते बाहर भी हो गया। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई। गुरु ने ज्ञान पता की दिता भी अंदर भी ते बाहर एक नूं जानिया जे, दो नहीं। सतगुरु गुरु नानक साहब का प्रकाश होया। माता तृप्ता जी प्रसन्न होए, दाई दे हत्थ च उन्हें आख्या पुत्र आए ने, पर जदों चानन होया दाई हैरान हो गई। कल्याण दास जी नूं बधाइयां दित्तियां। जदों बच्चा सतगुरु गुरु नानक साहब जी बच्चे दे रूप सन, कहंदे जाके जदों दौलता दाई ने दस्सिया, कहंदे जी एक अद्भुत घटना घटी है। कल्याण दास कहंदे जी की होया? कहंदे मेरे हत्थां 'च हजारां बच्चियां ने, सैकड़ियां बच्चियां ने जन्म लिया है, पर तुहाडे घर जिस बालक का अवतरण होया है, ये बालक कोई आम बालक नहीं है। कल्याण दास कहन लगे ऐसा की होया? दौलता कहन लगी महाराज पटवारी जी, कल्याण दास मेहता कालू आंदे सन, छोटा नाम, पूरा नाम सी कल्याण दास बेदी, छोटा नाम सी मेहता कालू।
कहन लगे मेहता जी जदों बालक ने जन्म लिया पहली घटना बच्चा रोया नहीं, बच्चा मेरे वाल देख के मुस्कुरा रहा सी, बड़ा खुश बड़ा प्रसन्न, खेड़े च सी, नूर सी चेहरे ते, और एवें लग रहा सी ये ते दुनिया च बड़े आराम नाल आए ने, बड़े सहज भाव च प्रगट होए ने, रोए नहीं। दूसरी घटना कहते दूजी घटना यह हुई है जदों ये मेरे इन्हां ने प्रकाश धारण किया ना आए ने, सारे कमरे दे विच दुधिया लाइट प्रकाश हो गया, चानन, ते ओह चानन इन्ना ठंड पा रहा सी, मेरा मन इन्ना ठार हो गया, शांत हो गया, इन्ना आनंद सी उस चानन दे विच। कल्याण दास जी का सुभाव वो पढ़न लिखण च सन, पटवारी का काम, उन्होंने थोड़ी जी गल सुनी, उन्होंने कहा अच्छा बड़ी चंगी गल है, बच्चे के दर्शन किए, सिर ते मतलब अणगौली जे अणगौलिया बचन कर दिता। महापुरुष होवे, संत होवे, ब्रह्म ज्ञानी होवे, अवतार होवे, साध संगत जी तीन बंदे ओनू कदी छेती कीतियां पछाणदे नहीं। पहले ओदे माँ बाप, दूसरे ओदे नाल खेडण वाले ओदे यार दोस्त, तीसरे ओदे पड़ोसी ते ओदे रिश्तेदार, उन्हां लई ओही है साडा। इसे धरती ते अवतार आउंदे ने, उत्तों थोड़ी आउंदे ने सीधे डिगदे ने। इस संसार च महापुरुष हुंदा माता दे उदर च प्रगट हुंदा। हुण गुरु नानक साहब जी का बचन सुन के उन्होंने चलो थोड़े दिन बाद जन्म पत्री लैके गए। जन्म पत्री बनवा क्यों? सिख धर्म की प्रारंभता, सिक्खी दी, नाम दी, सिमरन दी, किरत करन दी, वंड छकण दी, नाम जपण दी प्रारंभता गुरु नानक देव जी तो होंदी। गुरु नानक साहब जिस परिवार च प्रगट हो रहे हैं वह सनातनी है। साध संगत जी उन्हां दी मर्यादा ते ओही बनी सी ना जिहड़ी इस देश च चलदी सी। ब्राह्मण भी हुंदा सी, प्रोत भी हुंदा सी, जनेऊ भी पांदा सी, बोधी भी, बड़ा कुछ। गुरु नानक देव साहब दे पिता जी पंडित हरदयाल नाम दा कुल पुरोहित सी, कुल दा पंडित। ओहदे कोल जाके उन्होंने आख्या जी पुत्र होया, उन्हां वधाइयां दित्तियां। उन्हां नाम भी पंडित रखदा सी ते जन्म पत्री भी पंडित बनांदा सी। पंडित हरदयाल बड़ी बंदगी वाला पुरुष सी, बारीक बीन सी, काला नहीं सी पैंदा, शांत जित सी। कहंदे पंडित हरदयाल नूं जाके श्री गुरु नानक साहब दे पिता ने आख्या पुत्र दा आगमन होया, आए ने पुत्र मेरे घर, वधाई होवे। अगों वधाई दी पंडित जी ने। कहंदा महाराज हुण छेती छेती करो, इन्हां दी जन्म पत्री बनाओ ते नामकरण तुसीं करना है। उन्होंने अपना वही खाता चुकिया, क्या भी ये दस किन्ने वेले केड़ा दिन की समा तरीक सब कुछ पुछ के ते उन्होंने रख लई ते क्या भी 2 दिन बाद मैं आवांगा ते जन्म पत्री लैके आउंदा आवांगा तेरे घर। साध संगत जी जदों दूजे दिन पंडित हरदयाल नूं समा मिलिया अपने रुझेवियां चों ते उन्हें जन्म पत्री बनानी शुरू की। इतिहास दे विच लिखिया भी जदों ने ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे दिन समा रात महीना संबत साल सारे वेखे, बड़ा हैरान होया। कहंदा कतक दी पूर्णमाशी वाले दिन इस समय इस वक्त प्रकाश होना। साध संगत जी ने जदों जन्म पत्री बनानी शुरू की, बड़ा प्रसन्न होया। जन्म पत्री बना के नानक नाम रखिया गया ते दौड़दा होया कल्याणदास गुरु नानक साहब दे घर आ गया। सतगुरु जी दे घर आया, गुरु नानक साहब पातशाह दे घर आ गए, बाहर बह के बड़ा कदे काला नहीं सी पिया, पर अज काली जी मची उन्होंने मन च। कल्याणदास जी आवाज मारी, कल्याणदास बाहर आए, उन्हें वेख्या पंडित जी ने नमस्कार की, ब्राह्मण गुरु है जगत का। गुरु साहब कहते इस धरती से ब्राह्मण नूं गुरु मन्निया जाता सी। गुरु नानक साहब ने मर्यादा खत्म करके गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु बनाता, बाणी नूं गुरु बनाया। नमस्कार की, फतेह गजाई। कहंदा जी पंडित हरदयाल जी कहन लगे कल्याणदास जी बच्चा किथे वे जेड़े तुहाडे घर आए ने, मैं दर्शन करना चाहना, मैं व्याकुल हां। कल्याणदास जी कहन लगे पंडित जी की गल? नहीं नहीं पहला मैनूं दर्शन कराओ फिर दसांगा। साध संगत जी
कल्याण दास जी ने आवाज मारी, दाई दौलता अंदरों जाके ना लैके आओ बालक नूं। नाम नहीं से अजे रखिया, बालक। साध संगत जी अंदर गए। कत्तक दी पूर्णमाशी आ, कत्तक दा महीना, ठंड हुंदी थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा भी नहीं हुंदी, घट थोड़ी ठंड हुंदी। छोटे बच्चे ते बजुर्ग नूं ठंड ज्यादा लगदी। उन्होंने आख्या भी ये महाराज ये बच्चा बाहर दो बालक नूं ते असीं बाहर लैके जाइए। पंडित हरदयाल जी आए ने, माता त्रिपता जी ने संभालिया अपना पुत्र। उन्होंने सतगुरु जी नूं नाल पाया, लपेटिया बस्तरा। कहंदे नहीं नहीं नहीं, बाहर ठंड है, मैं क्यों दा बच्चा, ठंड लग जाएगी। दौलता जवाब लैके बाहर आ गई। पुत्र नहीं लैके आए। कल्याणदास ने आख्या बालक नहीं लियाई, तेनों आख्या। कहंदे जी माता जी देंदे नहीं। आप गए कल्याणदास, कहंदा त्रिपता जी नानक पंडित हरदयाल जी आए ने, कुल पुरोहित ने, ना नहीं करी दी। कहंदे ठंड लग नहीं लगेगी, मैं संभाल के ले। बड़े बाले वाली साखी च आनंद है। और नानक प्रकाश, अज सूरज प्रकाश की निंदा हो रही। मैं गुरु तो डर के आना, सूरज प्रकाश ग्रंथ होवे, गुरु का सिख कथा करदा होवे, साध संगत जी तुहाडे अगे फिल्म चल जाएगी। मैं हड्ड बीती दस रहा, प्रकाश होना, वड्डे होना, खेडना। 14 पोथियां ने सूरज प्रकाश दियां, इन्नी बनदी, चुक्या नहीं जाता एक बंदे तो। अज कथा शुरू करिए तुहाडे गुरुद्वारे, रोज 1 घंटा 1.5 घंटा कथा होए ते 7 सालां बाद भोग पएगा जाके। 7 साल हर रोज कथा होवे, 1.5 घंटा लाया जावे, निता प्रति नागा ना पवे ते 7 साल बाद भोग पएगा। एक किताब लिख के विखा दो मैनू, 2 छंद लिख के। किसी को कोई मामूली गलती हो गई उन्होंने फड़ के इन्नी वड्डी। तुहानू पता भाई संतोख सिंह जदों सूरज प्रकाश लिख के दरबार साहब लैके गए सन, ते दरबार साहब के ग्रंथियां नू पता लगा भाई साहब आए ने नूर दी सरां वाले, ते भाई संतोख सिंह जी के स्वागत च दरबार साहब के ग्रंथी फुल्लां दे हार लैके खड़े सन। गड्डियां ते वड्डा ग्रंथ स्थापन करके लैके दरबार साहब भेंट करन गए। तो मैं गुरुआं दा इतिहास लिखिया, मेरे को बेअंत भुल्लां हो गईयां। अज मेरे वर्गा ना समझ बंदा गुरु दी झूरी च बैठ के आपां 50 गल्लां करिए, एक माड़ी निकल जे माड़ी नूं ही फड़ लैणा आपां। साडे विद्वान उन्हां बचनां नूं गुप्त रखदे रहे। किसे नूं रोटी खवाइए ना, कई वारी ओहो जी सब्जी देई दी जिहड़ी पचे अगले नूं। 80 साल का बापू है, इहो जी दे दीए, उन्होंने पचे ही ना, या बच्चे नूं दे दीए, उन्होंने हिसाब नाल देना ना। सूरज प्रकाश की कथा जदों विद्वान कोई गुरु का सिख करदा सी, वो बड़े ढंग नाल वो बचन, किहड़े बचन, गुरु ग्रंथ साहिब च भी कुछ बचन ने, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कुछ बचन ने, मैं इत्थे उच्चारण करके हू बहू शब्दां दी अर्थ नहीं कर सकदा। हुणे ही भाई साहब कथा कर रहे सन, अमीर सिंह गाछो पुत्री राज कुआर, उहदे च भी एक शब्द आउंदा है, साध संगत ज्यों ज्यों रू सिर नावणी आवे वारो वारे दी व्याख्या नहीं कर सकते, आसा दी वार च आउंदा है। बड़े शब्द ने, भगमुख जन्म विगोया यदि नहीं कर सकते, शब्द नहीं खोल सकते, यू टर्न लेना पैंदा। गुरु से कह गए सहंसर दान दे इंद्र रुआया, सहस गौतम तपा है लिया स्त्री तिस देख इंद्र लुभाया, सह शरीर चीहन भागुए तामन पछताया। इस शब्द की हूबहू कथा करके विखाए कोई मैनू, बहुत हिसाब दे नाल किवें इंद्र दा धर्म गर्क होया। जे आखी ओही गल वो ये लिखिया नहीं, वो बड़े ताई गुरु ग्रंथ साहिब की संथ्या विद्वान कोल पढ़ना, उन्होंने समझ आउंदी, उन्हें अपने तो वड्डियां कोल पढ़िया हुंदा, वो फिर बड़े हिसाब नाल समझांदे। गुरु साहिब दा प्रकाश हुंदा। मुखसर मैरज करा विषय दरा, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे पिता जी कहंदे मैं संभाल के लैके जाना, कहंदे बड़े प्यार नाल लियाए ना। ते कल्याण दास जदों सतगुरु नूं लैके आए ते निरंकार पातशाह जी नूं जदों पंडित हरदयाल जी ने जदों वेखिया भी बालक आ रहे ने, उन्हें अपने जोड़े ला दिते। अज असीं वेखने आ गुरु ग्रंथ साहिब आ रहे, मैनूं नहीं लगदा कई सिख जोड़े भी नहीं लांदे। उन्होंने अपने जोड़े जेड़े पाए सन ला दिते। साध संगत जी जोड़े ला के उन्होंने दोवें हथ जोड़ के वो गुरु नानक साहब उन्होंने पिता जी बाबा कल्याण दास जी महाराज उन्होंने हथ च सन। पंडित हरदयाल ने अपना सिर गुरु नानक साहब के चरणों च रख दिता, उन्होंने मत्था टेकिया।
नमस्कार कीती, मत्था टेकिया, नमस्कार गुरुदेव कहो, नमस्कार कीती। अखां चों पानी डिग पिया, अखां चों पानी डिग्या। कल्याण दास कहन लगे, साध संगत जी बड़े हैरानगी वाला दृश्य सी, बड़ा कुछ कहना चाहते लेकिन बालक हाथ च ठंड तो एकदम अंदर लैके गए। तृप्ता नूं दे के माता जी नूं भजे हुए बाहर आ गए। आंदे पंडित जी बड़े हैरान होए, सारी दुनिया तेरे चरनां 'च मत्था टेकदी, तू मेरे बच्चे दे मत्था चरनां 'च मत्था टेकदा, मैनूं समझ नहीं आई। कल्याण दास जी नूं पंडित हरदयाल कहन लगे, मेहता जी तेरे घर जिहड़ा बालक पैदा होया है, इहदे ग्रह नक्षत्र इहदा समां दस रहा है, इहदी जन्म पत्री जो मेरे वो जन्म पत्री गुरु अंगद देव साहब ने खडूर साहब मंगाई सी। बाले वाली साखी च लिखिया, भाई बाला लैन गए सन, गुरु नानक साहब दे माता पिता सचखंड चले गए सन, सतगुरु गुरु नानक साहब सचखंड चले गए सन, लेकिन चाचा लालू मेहता कालू पिता सी ते चाचा लालू चाचा सी। जेड़े चाचा लालू जी सन वो जिउंदे सन। बड़ी बुजुर्ग अवस्था च उन्होंने बूहा खड़का के आख्या जी नमस्कार चाचा जी, गुरु अंगद साहब ने भेजा जन्म पत्री चाहिए गुरु नानक साहब की। उन्हें आख्या बुजुर्ग बड़ा हो गया, फलानी थां सी लभनी पेगी। शाम तक लभदे रहे, उथों लभ के भाई बाला जी दूजे तीजे दिन लैके आए सन। जदों जन्म पत्री गुरु अंगद देव साहब के हत्थ च आई सी ना कर कमलों च, इतिहास दे विच लिखिया महाराज ने वो जन्म पत्री अपने मत्थे नाल लाई, रखां चों बैराग फुट पिया सी। जदों गुरु नानक साहब की कथा लिखा रहे सन गुरु अंगद देव साहब, भाई बाला बोल रहा सी कथा, जदों दसदा सी हुण इंज इधर गए, मक्के गए, उत्थे गए, सुमेर ते गए, जगन्नाथपुरी गए, तिब्बत गए, चीन गए, श्रीलंका गए, करनाटका बिदर गए, बड़ा कुछ दसिया। कई प्रसंग सुनते गुरु अंगद देव साहब दे, कहते अखां दे विचों मोतियां वर्गे हंझू ढुलदे, उन्हां दा दाड़ा भेज जांदा, और गुरु अंगद देव साहब 3-3 दिन तक नेत्र नहीं सन खोलदे। असीं गुरु दी कथा सुनने असर नहीं हुंदा, निंदा करन लग जाने इतिहास दी। इतिहास सुनते सुनते बैराग आ जांदा, मेरा गुरु, मेरा पातशाह, मेरा साहब। साध संगत जी समा होने वाला है, मैं समाप्ति। सतगुरु श्री गुरु नानक देव 15 मिनट समा वधाया, मैं 15 मिनट होर महाराज दा जस गावां। श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह दे पिता जी बाहर आए, बाहर आके सतगुरु गुरु नानक साहब दे पिता धन धन बाबा कल्याण दास जी, उन्होंने पंडित नूं हथ जोड़ के आख्या मेरे समझ नहीं आई, मैनू छछो पंज च पा दिता जे, मेरा पुत्र होया ते तुसीं मत्थे टेकण दे हो, रोण दे हो। कहंदा मत्था मैं नहीं, इनू सारी दुनिया टेकेगी। समा आएगा तेरा पुत्र जिस पिंड च जाएगा, इनू मत्था टेकण वालियां दी लैना लग जांदी। वड्डे वड्डे राजे महाराजे छत्रपति योधे, वड्डे वड्डे देवते ऋषि मुनि अवतार पीर सिद्ध नाथ, 9 नाथ 84 सिद्ध 64 जोगणियां 52 वीर, 33 करोड़ देवते शहीद मुरीद, गुरु पीर पैगंबर राम कृष्ण हजरत ईसा मूसा जिन्ने भी ने तेरे पुत्र दे चरण होणगे ते सब दा सिर होएगा। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ इस धरती ते अज तक आया नहीं। कल्याण दास ਇਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛੱਤਰ ਝੂਲਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ नमस्कार होएगी। तेरे घर बहुत वड्डी शक्ति आ गई है, सुप्रीम पावर आ गई है। साध संगत जी कल्याण दास बड़े प्रसन्न होए, मेरे पुत्र दे सिर ते छत्तर झूलणगे। किसी दे पुत्र नूं कोई आखे, कोई महापुरुष तेरा पुत्र एडा कर्मा वाला, दुनिया इहनूं नमस्कार करेगी। मां ते प्यो दा हाल की हुंदा है? मां वारे वारे जाती है अपने पुत्र तो, ते आखण वाले तो भी ते पुत्र तो भी। कल्याण दास जी दा मन इन्ना प्रसन्न होया, पर कहण लगे फिर तुसी रोए क्यों हो? उन्हां सवाल किया फिर रोए क्यों, ये भी दसो। पंडित हरदयाल जी कहण लगे खुश इस करके हाँ भी मेरे जीवन च इन्हां दे दर्शन हो गए। मैनूं दर्शन परसे गुरु का,
जन्म मरण दुख जाए। साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब के दरबार च आके गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कीतियां, चौर कीतियां, मत्था टेकिया, जन्म मरण के दुख चले जाते हैं। साडे कोल टाइम ही नहीं हैगा। मैं कथावाचक हाँ, कथा करना, गुरु ने बाणी बाणा बख्शिया अपना। मैं वेना गुरुद्वारे सवेरे शाम थोड़े जे बजुर्ग होंदे ने, जवान बीबियां नूं पुरुषां नूं समां नहीं लग रहा गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शनां दा। उन्हां नूं पता नहीं गुरु ग्रंथ साहिब कौन ने। जिस दिन बंदे नूं पता लग गया ना गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह ने, साध संगत जी बाबा नंद सिंह कलेरा वाले महापुरुष ना 12-12 घंटे रात नूं 8 बजे खलोना, सवेरे 8 बजे तक चौर करते रहना। 12 मिनट नहीं चौर कर सकते, गोडे पीड़ होंदे ने। 12-12 घंटे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं चौर करनी। ते किसी ने पूछना की कर रहे हो? धन गुरु नानक देव नूं चौर कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब ना आखना, प्रगट गुरां की देह, प्रगट गुरां की देह। महाराज गुरु नानक साहब नूं चौर कर रहे हैं। गुरु नानक होण विराजमान, तुसी चौर ना करो। तुसी गुरु नानक नहीं मानते गुरु ग्रंथ साहब नूं। सच्चे साध संगत जी असीं नहीं मानते। तुसी सामने बैठे हो, अपने मन कोलों पुछो, तुसी गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु नानक मानते हो? तुसी गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु गोबिंद सिंह मानते हो? जिस दिन तुसी गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु गोबिंद सिंह मन्नो ते तुसी साध संगत जी वारे वारे ना जाओगे। कलगीधर बैठे हाजर नाजर ने गुरु ग्रंथ साहब। कदी भी आओ एवें मन च लैके आओ भी गुरु नानक बैठे ने, गुरु अंगद देव 10 गुरु विराजमान ने। इन्ना मन प्रसन्न हो जाएगा। जो मंगना अपने गुरु को मंग। हुणे ही भाई मेरी सिंह ने बड़ी वधिया गल कीती भी सिख दा शीश झुके ते गुरु ग्रंथ साहब अगे। सिख मन्ने ते गुरु ग्रंथ साहब नूं, सिख पूजे ते गुरु ग्रंथ साहब नूं, सिख प्रेम करे ते गुरु ग्रंथ साहब नूं। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोबिंद सिंह ने सानू गुरु रूप बख्शे ने। साध संगत जी वो कहने लगे तुसी रोए क्यों? कहंदा खुश इस करके सजदा कीता, इन्हां दे दर्शन हो गए। कल्याण दास पूछ रहे, पंडित हरदयाल जी दस रहे। पंडित हरदयाल जी कहने लगे रोया इस करके आ भी जेड़ी कली खिली है ना, जेड़ी कली खिड़ी है, जदों फुल बन के दुनिया नूं महकाएगी, इहदी बाशना दूर दूर तक खंडा ब्रह्मंडा तक जाएगी, उस समय मैं इस संसार तो चला गया होवांगा। ते मैं कह रहा खुदा हे वाहिगुरू हे राम हे अल्लाह तू मैनू बुजुर्ग कर, क्योंकि बुजुर्ग सन। उन्होंने नमस्कार किया। पिता फिर उस हिसाब च सन पटवारियां वाले, है तो बड़े वड्डे सन। गुरु नानक साहब किते एवें ही आ गए, धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। धन धन ने बाबा कल्याण दास, धन धन ने माता तृप्ता जी, धन धन उन्हां दी अंश बंस। साध संगत जी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह, उन्हां दे पिता जी, उन्होंने फिर जदों बचन सुनिया अंदर गए, एक दुशाला लियांदा, एक बस्तर लियांदे, चौल लियांदे, माया लियांदी, दिल खोल के पंडित हरदयाल दी झोली च धरता। कहंदे लो पंडित जी मेरे पुत्र दी इन्नी वड्डी उम्र, इन्नी वड्डियां बरकतां तुसीं आखियां ने, तुहाडी गल झूठ नहीं हुंदी। वो चले गए, समा बतीत होण लगा। गुरु नानक साहब जी जदों 3-4 सालां दे होए, 5 सालां दे होए, गुरु साहब की करन अपने गवांढियां दे बच्चियां नूं इकट्ठे करके ते साध संगत जी बिठा लैण करन गोलदारा बना के, ते पहिलां आप आखण करन, सारे बच्चियां नूं आखण बच्चिओ सारे जपो सतनाम श्री वाहिगुरू। सारे बच्चियां नूं, साध संगत जी आवाज नहीं आई, फिर सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों भी दरबार च गुरु ग्रंथ साहब च बैठे हुए सतनाम दा उच्चारण होवे, गज के बुलाई दा हुंदा भी साडी हाजरी लग जावे। ते जीव पता है दिन रात की बोलदी है, किसी नूं गालां, किसी दी चुगली, किसी दी निंदा। जीवा दित्ती बोलन तात दिन रात ही बोलदी है, तड़ाक तड़ाक। जदों गुरु दा गल हुंदी ते बोलदी नहीं, फिर उच्चारण करना सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत जी सतगुरु श्री गुरु नानक साहब की चाल वखरी सी।
बच्चे खेडते सन, नाम जपाते सन। माता पिता बड़े प्रसन्न होए भी बच्चा तो धार्मिक है। कल्याणदास भी खुश थे, मां तो पहले ही बड़ी खुश है, शांत है। होर वड्डे होए जिहड़ी चीज होए बाहर देउण, जिहड़ी चीज होए बाहर देउण। पिता नूं चिंता होण लगी भी ये किहड़ी चाल है, जिहड़ी चीज देने बाहर दे आउंदा गरीबां नूं। हुण उन्हां नूं पता अजे नहीं सी, अजे अगे जाके पता लगना सी। इन्हें सारी दुनिया नूं दातां वंडणीआं ने, असीं गुरु नानक कोलों दातां लैने आ, सानू दातां बख्शदे ने श्री गुरु नानक देव। किसे नूं दुध, किसे नूं पुत्र, किसे नूं देह रोगता, किसे नूं धन गुरु देंदा ना। दूध पूत के दिवैया, रोग सोग के मिटैया। दुध पुत्र दा देन वाला है, रोग सोग मिटान वाला है गुरु नानक साहब पातशाह। साध संगत जी उन्होंने वेख्या पिता ने भी ये मेरा पुत्र ते होर हिसाब दा है, इहदा कोई ख्याल खेडण च नहीं, पाण च नहीं, कोई खाण च नहीं, कोई रंग तमाशियां च, कल्ला बैठा रहिंदा है। चिंता जी हुई, माता जी ने बचन किया। माता कहते चिंता ना करो, परमेश्वर का ध्यान धरते ने, चंगी गल है। कल्याणदास चाहते सन SP चाहता मेरा पुत्र SP लगे, DC चाहता मेरा पुत्र DC लगे। जेड़ा बंदा जिस किते च हुंदा है और उहदे च ओहदी इज्जत होए, चाहता मेरा पुत्र ही बने। भाई कल्याणदास चाहते सन पढ़े लिखे हिसाब सीखे ते जेड़ी मेरी गल है अगां वधाए ते भी पैसे कमाए, बलादरी च मेरा नाम होए भी कल्याणदास दा पुत्र बड़ी कमाई करदा है। भाई साध संगत जी श्री गुरु नानक देव महाराज दी चाल निराली, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना। बिखम मार्ग भगतां दी चाल बड़ी, लोकी पैसे लिए मर रहे होंदे ने, भगत रब लई मर रहे होंदे। ये है चाल भगतां दी। पर गुरु साहब ते भगतां दे मालक ने ना, उन्हां दी चाल ते अपने भगतां वर्गी। 5 साल 6-7 दे जदों होए ते उन्हें आख्या चलो पढ़ने पाइए। गोपाल पंधे को लैके गए, बड़ा वड्डा इतिहास है। मैं किन्ना मैं जतन करा थोड़े जे मैं समाप्ति करांगा, मैं संखेप च कर दांगा 5 मिनटां समाप्ति तक। इन्ना विशाल मैं तां ही आख्या सी भी सारे 84 लख जूनियां गाण तां भी नहीं गा सकते सी गुरु दा जस पूर्ण रूप। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं गोपाल पंधे को लैके गए। गोपाल पांधा पढ़ाण लगदा है। महाराज कहन लगे 1-2 दिन पढ़े, तीजे दिन कहते पंडित जी गोपाल जी ये नहीं कोई सच्ची पढ़ाई पढ़ाओ। कहते जी वो किहड़ी हुंदी है। उथे फिर महाराज ने आसा महला पहला पट्टी लिखी, आसा राग अपनी पट्टी, पट्टी हुंदी ना तख्ती, ओदे उत्ते फिर इवड़ी इर पुरख सुखदाता सारा शब्द सारा ज्ञान लेके उन्होंने आख्या आ पढ़ा। एक एक अखर लिखिया, अखर दे नाल ओदा ज्ञान दिता। पंडित वेख के हैरान, तेनू किन्ने पढ़ाया? कहंदा अकाल पुरख नहीं पढ़ाया। हुण जिहड़े आंदे ने दिमाग खोलो दिमाग खोलो दिमाग खोलो, गुरु नानक साहब नूं किन्ने पढ़ाया? भाई मक्के मदीने जाते ने फारसी बोलते ने, ईरान इराक च जाते ने उत्थे अरबी फारसी बोलते ने, जगन्नाथपुरी ते काशी बनारस च जाते ने संस्कृत बोलते ने, तिब्बत जाते ने ते उत्थे जाके चाइनीज बोलते ने। किन्ने सिखाईयां ने भाषा? त्रिकालदर्शी हुंदा है सतगुर, धुर दरगाह तो सब कुछ लैके हुंदे ने। सर्व कला का दाता सतगुर, सारियां कला दा दाता है, देण वाला है, उत्ते बख्शण वाला है। उन्होंने की कमी? साध संगत जी जिहड़ा बंदा दूजियां नूं वंडदा है उहदे कोल की घाटा रहेगा। बड़े हैरान होए। दूजे दिन आके कल्याणदास नूं मत्था टेकिया, कहंदे इहनूं ते दुनिया दा कोई पढ़ा नहीं सकदा, ये पढ़ाण आया पढ़न नहीं आया। एक शेख सी उहदे कोल लै गए, बड़े हैरान होए भी पढ़न भी नहीं लगा। शेख ने भी हत्थ जोड़ दिते। संखेप च घर आ गए, पिता उदास परेशान, कहंदे चलो तू मज्झां चारिया कर। साध संगत जी मज्झां चारन लग गए। खेती लैके जाते, खेतां दे विच खेती खड़ी हुंदी, फसलां खड़ियां हुंदियां। महाराज रुख दे किते छावें बह जांदे ते बैठ के महाराज उत्थे भी सतनाम श्री वाहिगुरू चारण करदे, अकाल पुरख दे चरनां दा ध्यान धरदे। मन उधर ही लगा रहिंदा। खेती साध संगत जी उजड़ गई।
ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਖੜੀ ਏ। ਨਾਗ ਨੇ ਫਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੇਂਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਅਵਤਾਰ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਛੱਪ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਝੁਕ, ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਅੰਗਲ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਰੇੜਦਾ ਪੰਜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਦੇ ਅੰਜੇ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ, ਘੁੰਮਿਆ ਮੱਕਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਟੰਗੋਂ ਕਈ ਆਂਦੇ ਜੀ ਦਿਮਾਗ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ। ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਬਈ ਟੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਧਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘਸੀਟਿਆ ਤੇ ਮੱਕਾ ਫਿਰਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਣਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵੇਖ ਦਿਵਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਿਤਾ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ। ਦੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਚਾਟ ਮਾਰਦੇ, ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਮਾਰ ਲੱਗਦੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਹ ਵਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਕਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇਹ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੋ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਸਨ? ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਏ। ਜਗਤਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਏ। ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆ, ਹਜ ਕਰਨ ਗਏ ਸੰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਤਰਾ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
जेड़ा गुरु का सिख कहवांदा है गुरु के कहे ते नहीं चलदा, रोंदा ही रहेगा। घर च भी रोएगा, बाहर भी रोएगा, सज्जना कोल भी रोएगा, दुश्मना कोल भी रोएगा। ते जेड़ा गुरु दा सिख, गुरु की सिखी कमान वाला है, अमृत छकिया होया है, अमृत वेले उठदा, ककार धारण कीते ने, बाणी पढ़दा है, ना निंदा चुगली सुनदा है ते ना करदा है, बंदगी करदा है, ओदी चढ़दी कला है, ओदे ते मेहर है मालक दी। साध संगत जी, महाराज जगन्नाथपुरी भी ज्ञान देंदे, सुमेर पर्वत ते सिद्धां नूं राह पांदे। सिद्ध छप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा। तुसी इत्थे सुमेर च बह गए हो, धरती नूं कौन पार लाएगा, तुसी दसना सी लोकां नूं। मक्के मदीने ज्ञान देंदे, सुमेर पर्वत ते ज्ञान देंदे, चारे पासे ज्ञान देंदे पातशाह। समा बतीत हुंदा जांदा, संगत जुड़दी जांदी, अंत नूं महाराज कहंदे गरीब नवाज पहला उदासियां दा रूप धारण कीता ना, बाबे भेख बनाया, उदासी की रीत चलाई। उदासी की रीत चलाई, जेड़े मुल्क जाना वो चोला पा लेना। मक्के मदीने गए नीला पा लिया, सुमेर पर्वत ते गए भगवा पा लिया। जदों गुरु नानक साहब करतारपुर बैठे, भेख उदासी उतार के करतारपुर किया स्थाना, करतारपुर विराजमान होए, भेख उतार दिता, मंजी ते बैठ गए, उपदेश करन लगे, संदेश देन लगे। अज जिथों दा लांघा खुल गया, खुले दर्शन दीदारे मंगने आ ना, साडी अरदास थोड़ी प्रवान हो गई है। एक खुल गया, मैं गुरु अगे अरदास करा, तुसी भी कर दिओ। एक समा आए असी कार दे बईए, जिवें दरबार साहब जाने एवें ननकाना साहब चले जाइए। ऐसा समा सतगुर लियाउणगे जदों पाकिस्तान च भी 10 करोड़ खालसे प्रगट हो जाणगे, चीन च भी 20 करोड़ खालसे प्रगट हो जाणगे, ते फिर वो आपे खुला देणगे भी साडा ते सेंटर ही इधर है, साडे भरा ही इधर ने, ते खोलो ते गुरु खुलाएगा। करतारपुर विराजमान होए ने, भाई लैणा जी आ गए ने, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ लईआं ने, सारियां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ च पास होके अंतली ਪ੍ਰੀਖਿਆ हुंदी है। अपनी मुट्ठी दे विच एक दमड़ा रख के पैसा रजतपन आंदे सन, उहनूं दिनार नूं रख के महाराज कहंदे श्री चंद मेरी मुट्ठी च की है। बाबा श्री चंद दी निंदा करन वाला मूर्ख है। वो एक महापुरुष ने, गुरु पुत्र ने। साध संगत जी, उन्हां दा सत्कार बड़ा पंथ दे विच। गुरता गद्दी नहीं मिली, ये गुरु दी कला है। जिन्हें बचन पूरा मन्निया उन्होंने मिल गई, पर पुत्र और तपस्वी। गुरु ग्रंथ साहब लिखिया, सुपने च बंदा उठ के वाहिगुरु आखे ना, राम आखे, ओदे चरनां दा जोड़ा बनाना होवे ना, गुरु ग्रंथ साहब कहंदा मेरी, भगत कबीर कहंदे मेरी खल ला दिया जे ते ओदा जोड़ा। ते बाबा श्री चंद 5 साल दी उम्र दे विच माता सुलखणी लभदी हुंदी सी, मेरा श्री चंद किधर है, मेरा श्री चंद किधर है। ते बाबा श्री चंद साहब बाहर जाके बोर्ड के थले जंगल च बच्चे खेड रहे होंदे, ते बाबा 5 साल की उम्र चौंकड़ा मार के 8 घंटे बैठा रहिंदा दी याद दे विच, ते असीं ओदी निंदा करिए। गुरु ग्रंथ साहब कहंदा सुपने च नाम जपे, उंज ही निकल जे ओदे चरनां दा जोड़ा बनाया, मेरी खल ला लो, ते असीं गुरु पुत्र दी निंदा करिए, लानत है। साध संगत जी, बाबा श्री चंद क्योंकि पुत्र है, कल दुनिया ना आखे पुत्रां नूं क्यों नहीं दित्ती, परख ते लैंदा, परखिया पुत्रां नूं, पर गुरता गद्दी दे जोग या उन्हां दी कला उथों तक नहीं। तो गुरता गद्दी भाई लैणा जी नूं मिलदी, पर संत पद सत्कार योग हस्ती ने, गुरु हरगोबिंद साहब ने अपना साहिबजादा उन्हां दी झोली च पाता सी, बाबा गुरदित्ता। साध संगत जी, महाराज मुट्ठी च लै गए, श्री चंद मेरी मुट्ठी च की, कहंदे महाराज 1 दिनार, 1 पैसा 1 रुपया है। साध संगत जी, फिर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह और सिखा संगतां को पुछदे, सारे कहंदे 1 रुपया, कहंदे लैणे नूं सद के लियाओ, बाहर तुसीं जोड़े लाए ने, भाई लैणा जोड़े साफ कर रहे सन, गुरु अंगद देव भज्जे होए दौड़े होए आए, गल च पल्ला मैनूं गुरु नानक साहब ने याद किया, हाँ जी उन्होंने याद किया। आ गए महाराज सच्चे पातशाह ने इंज मुट्ठी खोली, पैसा रुपया विखा के कहंदे लैणिया साडी मुट्ठी च की, दोवें हथ जोड़ के अखां जो बैराग आ गया, कहंदे पातशाह मेरी ये ताकत है, मैं ये गल दसां गुरु नानक साहब की मुट्ठी च की, मेरी इन्नी समर्था नहीं, तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी रा, मैं तो छोटी अकल दा बंदा महाराज। महाराज बड़े खुश है, कहंदे फिर भी दस की,
गुरु नानक साहब नूं भाई लैणा कहन लगे महाराज बहुत उपमा थोर कही वाली गल है भी तेरी उपमा बड़ी वड्डी मैं थोड़ी कह सकना। 9 नाथ 84 सिद्ध 64 जोगणी 52 वीर 33 करोड़ देवते इस धरती ते जिन्ने पीर फकीर संत भगत औलीए 84 लाख जूना करोड़ा ब्रह्मंड जन्म मरण सचखंड धरती आसमान जो कुछ भी चर अचर दिसदा ना दिसदा जो कुछ भी इस खंडा ब्रह्मंडा दिसदा ना दिसदा है हे सतगुरु सारा कुछ तेरी मुट्ठी च। साध संगी जदों बचन आख्या ना महाराज ने सारे सिखां वल वेख्या ये महाराज का इशारा सी वेखो फिर क्यों ना दा गुरता गद्दी। आपां किसी दे नेड़े कदों हुंदे आ जदों कोई साडा पूरा दिल जित लैंदा है। गुरु साहब गुरु नानक दा 100% दिल जित लिया सी भाई लैणे ने। किवें जित्तिया सी? आप गवाई है तां शह पाई है और कैसी चतुराई। आपा गवाता कदे नहीं कदे गुरु साहब के मुख वाल नहीं वेख्या चरना च दृष्टि रखी बचन कमाया हुक्म मन्निया प्रवान हो गए। गुरु साहब ने गुरता गद्दी का तिलक दे के 5 पैसे नरेल रख के परिक्रमा करके आख दिता अज तो बाद जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटिया। हुण लैणा जी गुरु बन गए ने इन्हां नूं अंग बनाता अंगद बना दिता है गुरु अंगद देव साहब बन गए। आप साध संगत जी सचखंड प्याना गुरु नानक साहब करन लगे सचखंड नूं चले गए। मुसलमानां ते हिंदुआं च थोड़ा विवाद पै गया। विवाद ये पै गया मुसलमान आखण साडा पीर सी असीं दबना, हिंदू आखण साडा गुरु सी असीं संस्कार करना। कमाल दी गल है जिहड़ा बाबा सारी जीवन एकता दा उपदेश करदा उहदे ते ही लड़े। विद्वानां दा कथन है उत्थे एक चादर सी शरीर ते महाराज साहब सच्चे पातशाह चादर एक विद्वान कोई महापुरुष आया उन्हें आख्या भलिओ आपस च वाद विवाद ना करो चादर चुक के वेखो। चादर चुक के वेख्या थले फुल पिया सी फुल पए सन। सतगुरु सचखंड चले गए। गुरु गोबिंद सिंह सचखंड इसे तरह चले गए। गुरु अर्जन देव सचखंड इसे तरह चले गए। शरीर प्राप्त नहीं होए। उन्होंने चादर दो कर लई मुसलमाना ने दफना दी। मुसलमाना ने हिंदुआ ने संस्कार। नानक गुरु नानक शाह फकीर हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। ये गुरु नानक साहब सचखंड प्याना कर गए। अपनी था अपना सब कुछ बड़ी वड्डी गल है अपने पुत्रां नूं ना दे के अपने दास नूं दिता अपने सेवादार नूं दिता। सेवादार बड़ा वड्डा हुंदा जे बड़ा वड्डा हुंदा सेवा जिहड़ा सेवा करदा ना सेवा करत होए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। जिहड़ा सेवा करदे निष्काम हो जे सेवा दे करे गुरु आखे की चाहिए महाराज तेरी खुशी चाहिए। जोड़े झाड़े की चाहिए तेरी खुशी चाहिए। लंगर वरताए की चाहिए तेरी खुशी चाहिए। सिमरन करे की चाहिए तेरी खुशी चाहिए। ते गुरु आंदा फिर हुण सारा कुछ ही तेनू दे दांगा मेरी खुशी ते बड़ा कुछ है। साध संगत जी ये संखेप च मैं सतगुरु का जीवन तुहाडे अगे रखे 10-5 मिनट उत्ते हो गए। मैं खिमा दा जाचक गुरु साहब सचखंड नूं प्याना कर गए 1469 ईस्वी नूं। वाहिगुरु 1539 ईस्वी नूं 1469 नूं प्रकाश 1526 बिक्रमी नूं सचखंड प्याना कर गए। करतारपुर साहब वो थां है जिथे महाराज ने अंतला समा बतीत किया। वो खुले आपां उहदे दर्शन कर सकने। पर मेरी अरदास है गुरु नानक दा रूप गुरु अंगद देव, गुरु अंगद दा गुरु अमरदास, गुरु अमरदास दा गुरु रामदास, गुरु रामदास दा गुरु अर्जन देव दा गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हरगोबिंद साहब दा गुरु हरराय साहब, गुरु हरराय साहब दा गुरु हरकिशन साहब, गुरु हरकिशन साहब दा रूप गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु तेग बहादुर साहब दा रूप गुरु गोबिंद सिंह दा और 10 गुरुआं दा हाजर नाजर स्वरूप धन श्री गुरु ग्रंथ साहब ते धन श्री गुरु पंथ साहब। 5 प्यारे गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया गुरु ने। क्यों अज डेरिया ते गुरु मंत्र मिलता है। साडा गुरु मंत्र पता किवें मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया खंडे बाटे का अमृत तैयार होंदा है। 5 प्यारे तैयार करते हैं। उस तो बाद अमृत पान करवाते हैं। फिर गुरु मंत्र ते मूल मंत्र का मंत्र दान करते हैं। सिक्ख्या देंदे ने भी इनू जपना। खंडे बाटे का अमृत छक के गुरु मंत्र मूल मंत्र का जाप करो। मूल मंत्र एक ओंकार तो लैके नानक होसी भी सच तक करया करो।
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੜਾ ਜਪੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਈਰਖਾ 'ਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਘਰੋਂਡੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਸਿੰਘ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।